BBC اردو کے پروگرام سردین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ پاکستان میں صحافیوں پر حملوں میں ملوث مجرموں کے خلاف کارروائیاں نہ ہونے کے برابر۔ محض اس سال 7 حملے ہوئے، حالات کیسے بدلیں گے؟ جب تک ہم ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے، ان کو سزا نہیں ملے گی اور آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ حملے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش کے ایک پاور پلانٹ میں دھماکے سے 26 افراد ہلاک اور کم از کم 100 زخمی۔ اور لے چلیں گے آپ کو آج کے سینٹ پیٹرز برگ میں، جہاں سے 100 سال پہلے آنے والے انقلاب نے دنیا بدل ڈالی۔ آج دنیا بھر میں صحافی مخالف جرائم پر کارروائی نہ ہونے کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ 5 ماہ میں کم از کم 4 صحافیوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ ماضی میں بھی صحافیوں کو دھمکیاں دینے، ہراساں کرنے، یہاں تک کہ انہیں ہلاک کیے جانے کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں، مگر نہ تو ذمہ داروں کا تعین ہو سکا اور نہ ہی کسی کو سزا ملی۔ ان واقعات نے صحافیوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا، جس سے سیلف سنسرشپ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ فرحت جاوید کی رپورٹ۔ احمد نورانی پر گزشتہ ماہ ہونے والا حملہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ وہ پاکستان کے ایک بڑے انگریزی روزنامے میں تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کی حالیہ خبریں عدلیہ اور فوج سے متعلق تھیں۔ احمد نورانی پر اس حملے سے پہلے اسی ادارے کے ایک اور صحافی حامد میر پر 2014 میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ حامد میر سمجھتے ہیں کہ ملک میں صحافیوں کو نشانہ بنانے کے معاملے پر حکومتیں، ادارے، سیاستدان اور غیر ریاستی عناصر سب متحد ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں پر جتنے بھی حملے ہوتے ہیں اس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں یا اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں، جب تک ہم ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے، ان کو سزا نہیں ملے گی اور آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ حملے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ پاکستان میں کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق ملک میں گزشتہ 16 سالوں میں 100 سے زائد صحافی قتل کیے گئے۔ ان میں سے اب تک صرف 3 واقعات میں ملوث افراد کو سزا سنائی گئی۔ ان سالوں میں 2014 صحافیوں کے لیے بدترین سال رہا، جب 16 صحافی ہلاک ہوئے۔ مختلف بین الاقوامی ادارے کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں صحافی ریاستی اور غیر ریاستی دونوں قسم کے دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی بہت سے طالب علم ایسے ہیں جو ان خطرات کو دیکھتے ہوئے بھی صحافت کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف اگر نہیں اپنی آواز اٹھائیں گے نا تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بیریئرز بن رہے ہیں اور ہمیں اس کو اوورکم کرنا پڑے گا۔ آرگنائزیشنز کو بھی چاہیے کہ جو ہے اپنی ممبرز کو جو ہے پروٹیکٹ کریں اور ان کو فائنینشلی اور سیکورٹی پرووائڈ کریں۔ لیکن اکثر نامعلوم افراد کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے صحافیوں کے ادارے ان کے مقدمات کی پیروی نہیں کر پاتے۔ یہ رائے بھی موجود ہے کہ میڈیا ہاؤسز کی غیر جانبداری صحافیوں کو کسی حد تک تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ اگر ادارے کی اپنی بیلنس پالیسی ہے، اس کا جھکاؤ کسی ایک سیاسی گروہ یا کسی ایک غیر ریاستی اداروں کی طرف نہیں ہے، تو عموماً اس کے صحافی اور اینکرز ذرا نسبتاً محفوظ رہتے ہیں بنسبت ان اداروں کے جو کہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی ادارے پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق صحافیوں کے خلاف جرائم پر عدم کارروائی ان پر تشدد کی بڑی وجہ ہے۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست موجود ہیں صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک پاکستان کے ڈائریکٹر اقبال خٹک۔ اقبال خٹک صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں صحافی مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، لیکن مارنے پیٹنے والوں کا، ملزمان کا بہت کم قانون کی گرفت میں آنے کا پتہ چلتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کئی وجوہات ہیں اس کے۔ پہلا جو قدم ہے وہ FIR کا صحیح اندراج نہ ہونا، پھر جو ہے پولیس کی کمزور تحقیقات، اور پھر ان غریب خاندانوں کا جو کہ اس جو خرچہ ہے قانونی آتا ہے اس کی کمزوری، پھر جو آخری میں جو ہمارا نظام ہے انصاف کا، عدالتی نظام جو ہے وہ اتنا لمبا وقت لے رہا ہے کہ اس میں ابھی تک اس طرح کی وہ بات مشکل ہے۔ اس سارے وجوہات کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 17 سالوں میں جو 100 سے زیادہ صحافی قتل کیے گئے ہیں، ان میں صرف 3 صحافیوں کے
हवाले से तहकीकात आगे चली है, मुल्ज़िमान का पता चला है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको सज़ा अदालत की तरफ से हुई है, लेकिन उस सज़ा पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है क्योंकि अभी वो अपील के स्टेजेस में है। लेकिन इकबाल खट्टर साहब, मुतअद्दिद लोग शायद ये भी समझते हैं कि मीडिया की पिटाई दुरुस्त है क्योंकि उनकी समझ के मुताबिक मीडिया वाले हमेशा बहरानी कैफियत पैदा करते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये तासुर दुरुस्त है? मेरे ख्याल में ये तासुर उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो कि मीडिया की आज़ादी में यकीन नहीं रखते हैं, जो कि लोगों के मालूमात तक रसाई के हक की हिमायत नहीं करते हैं, जो कि पाकिस्तान की कानूनी और आईनी हक के लोगों का जानने का उनमें उनकी अदमी दिलचस्पी। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सहाफ़ियों से गलतियाँ नहीं होंगी, मीडिया से गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि सहाफ़ी की पिटाई बड़ी ज़रूरी है, मेरे ख्याल में ये उन लोगों की सोच और कोशिश है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ अवाम में एक नफ़रत भी पैदा की जाए और इसका जो फ़ायदा है वो उन लोगों को होगा जो कि इस मालूमात तक रसाई के ख़िलाफ़ है। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ न देने का सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत क्या कर रही? देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं समझता हूँ कि सहाफ़ियों की जो हिफाजत है या उनकी सिक्योरिटी का वो है, वो सिर्फ हुकूमत का मसला है, ये से फरीकी मसला है। यानी हुकूमत का भी एक किरदार है, मीडिया के इदारों का एक किरदार है और ख़ुद सहाफ़ियों का इसमें किरदार है। जब तक ये तीनों फरीक एक साथ काम नहीं करेंगे और वो तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं करेंगे तो ये जो मुश्किल है, ये मुश्किल है कि ख़त्म करे हमें। सो लिहाजा मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान में अभी तक कानून साजी नहीं कर सकी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मीडिया के इदारे अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं ला सके और सहाफ़ी जो है उन प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। मोहतरम इकबाल खट्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र। इंडिया की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के एक बिजली घर में एक बॉयलर फटने से हलाक होने वालों की तादाद 26 तक पहुंच गई है, लेकिन हलाक शुदगान की तादाद में इजाफे का खदशा है क्योंकि कुछ लोग अब भी लापता हैं और कुछ जख्मियों की हालत नाजुक भी है। दिल्ली से सुहेल हलीम की रिपोर्ट। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मुल्क में बिजली बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। हादसे के बाद ऊंचाहार पावर स्टेशन का ये यूनिट बंद कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह चंद माह कबल ही किया गया था। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है, जबकि मकामी लोगों का दावा है कि बहुत से लोग अब भी लापता हैं। यहाँ पे ENTPC हॉस्पिटल है, आप देख रहे हैं, इसमें कल शाम को जगह नहीं थी, हम लोगों का आदमी खोया हुआ है, मिल नहीं रहा है, एम्बुलेंस से वहाँ लेके आया गया है, यहाँ बोल रहे हैं कोई नहीं आया। उनका कहना है कि बहुत सी लाशें इतनी झुलस गई हैं कि उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं है, लेकिन रियासती हुकूमत के मुताबिक बिजली घर में से तमाम लोगों को निकाला जा चुका है। हादसे की अदालती इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। सहाफ़ियों को आज दोपहर ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उस यूनिट तक नहीं जाने दिया गया जहां ये हादसा पेश आया था। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया। उनकी वालदा सोनिया गांधी इसी हलके से पार्लियामान के लिए मुंतखब होती हैं। इंडिया बड़े पैमाने पर जौहरी बिजली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हादसात की सूरत में मुआवजे की अदायगी के लिए मुल्क में एक इंतहाई सख्त कानून मौजूद है, जिसकी वजह से गैर मुल्की कंपनियां यहां जौहरी बिजली घर लगाते हुए घबराती हैं। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची रखाइन के दौरे पर हैं। रियासत रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौजी कार्रवाई और उसके नतीजे में होने वाले तशद्दुद और नक्ल मकानी के बाद ये आंग सान सूची का पहला दौरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की जानिब से आंग सान सूची को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। न्यूयॉर्क के हमले के मुलजिम सैफुल्लाह सैपोफ ने तफ्तीशकारों को बताया है कि वो इस हमले की तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हलाक करने का इरादा रखते थे। उन्होंने कहा कि वो इस हमले के बाद खुशी महसूस कर रहे हैं।
पापुआ न्यू गिनी का हिरासती मरकज बंद होने के बाद वहां अब भी मौजूद 600 तारिकीन वतन जमीन खोद कर पानी ढूंढ रहे हैं। ये तारिकीन वतन गैर कानूनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाते हुए पकड़े गए थे, फिर इन्हें पापुआ न्यू गिनी के हिरासती मरकज में मुंतकिल कर दिया गया था। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा, दुनिया को झंझोड़ देने वाले 10 दिनों का आगाज कब, कहां और कैसे हुआ था। इंडिया के मुसलमानों में योगा का रुझान क्यों बढ़ रहा है, देखिएगा जरा देर बाद। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। रूस में आने वाले उस इनकलाब को 100 साल हो गए कि जिसके बारे में कहा गया था कि ये 20वीं सदी में दुनिया में आने वाली तब्दीलियों की अलामत बन जाएगा। मॉस्को में हमारे नामनिगार स्टीव रोजनबर्ग रूस के उन शहरों में गए जहां के लोगों ने 1927 के इनकलाब में कलीदी किरदार अदा किया था और ये जानने की कोशिश की कि अब वहां के लोग बोल्शेविक इनकलाब को कैसे याद करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग से स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट, सलीम काजी की ज़बानी। ये है सेंट पीटर्सबर्ग, रूसी इनकलाब का गहवारा। आज से 1 सदी पहले सेंट पीटर्सबर्ग में जो हुआ उसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया। सोवियत दौर की फिल्मों में इसे रूस की तारीख के बेहतरीन लम्हे के तौर पर पेश किया गया। मौसम सरमा के महल पर मजदूरों, किसानों और सिपाहियों की चढ़ाई और महल से ताकत छीन कर आम लोगों के हाथ में देने का अज़्म। आज ये महल एक अजायब घर बना दिया गया है और बोल्शेविक इनकलाब की 100 साला तकरीबात के हवाले से यहाँ एक ऐसी पोर्ट्रेट की नुमाइश हो रही है जिसे पहले छुपा कर रखा गया था। ये पोर्ट्रेट अलेक्जेंडर II की है, जिसके चेहरे पर महल पर धावा बोलने वाले इनकलाबियों ने अपनी बंदूकों की नोकों से सुराख कर दिए थे। कदीम रूस से नफरत के इजहार की एक अलामत। हम दुनिया को सबक दे रहे हैं। ज्यादातर सबक ये कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये रूस का तारीखी मिशन बन चुका है कि हम दुनिया को बड़ी गलतियां करने से बचाएं, खुद अपने ऊपर जुल्म करने से बचाएं। बोल्शेविक इनकलाब के 1 सदी गुजरने के बाद आज भी सेंट पीटर्सबर्ग 1917 के इनकलाब की अलामात से भरा पड़ा है, जैसे व्लादिमीर लेनिन का ये मुजस्समा। लेकिन दौरे जदीद के रूस को इन अलामात से ज़्यादा सरोकार नहीं रहा। रूसी बच्चों के लिए सोवियत यूनियन की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मैंने 15 साला येगो से पूछा, तुम जानते हो व्लादिमीर लेनिन कौन थे? देखते हैं 11 साला फारिया क्या कहती हैं। और हुक्काम में भी ये दिलचस्पी कम ही है कि वो 1917 के इनकलाब के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाएं। इसीलिए आपको 7 साला तकरीबात में भी वो जोश व जज्बा नज़र नहीं आएगा जो फ्रेंच ब्रेस्टिल डे पर देखने में नज़र आता है। अगर बात करें बोल्शेविक इनकलाब की असल पैगाम की, तो आज के रूस के हुक्मरान मुनकसिम हैं। एक तरफ ये इनकलाब ही था जिसके बतन से वो सोवियत यूनियन पैदा हुआ जिसके कसीदे खुद व्लादिमीर पुतिन कई मरतबा पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये इनकलाब अपने वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक बगावत थी। और मेरा ख्याल नहीं कि रूस का हुक्मरान तबका इस किस्म के किसी पैगाम को फ़रोग़ देना चाहेगा। रूस में 1917 का इनकलाब, स्टीव रोजनबर्ग की थी ये रिपोर्ट। आइए देखते हैं इस वक्त हमारी वेबसाइट पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। CIA ने उसामा बिन लादेन के मकान से मिलने वाली मजीद दस्तावेज़ात जारी कर दी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की मालियत 5000 पाउंड से तजावुज़ कर गई। और 100 साल पहले जब 67 अल्फाज ने अरब इसराइल तनाज़े की बुनियाद रखी थी। इन खबरों को आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। योगा दुनिया भर में खुद को चाको चौबंद रखने वालों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इंडिया के मुसलमान अक्सर योगा को हिंदू तहजीब की मुनासबत से देखते हैं और इससे परहेज़ करते रहे हैं, लेकिन योगा से सेहत के लिए फ़वाइद को भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता है ना। अब इंडिया की रियासत गुजरात में योगा से फ़ायदा उठाने का एक इस्लामी तरीका निकाला गया है। तफसील के साथ आरिफ शमीम।
योगा क्लास में खुदा की तारीफ। इंडिया में योगा को हिंदू तहजीब से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए वहाँ मुतअद्दिद मुसलमान मजहबी बुनियादों पर इसमें हिस्सा नहीं लेते। लेकिन ये ख़वातीन इस रवायत को बदल कर योगा के फ़वाइद हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे पूरे जिस्म और कंधों में दर्द रहता था। योगा शुरू करने के बाद से मुझे बहुत आराम है। जब हम अपनी पहली क्लास के लिए जमा हुए, हमने लोगों से कहा कि हम अल्लाह के 99 नामों को योगा के आसनों के साथ ले रहे हैं। योगा में इन नामों की विर्द से ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की सेहत में मदद मिलती है। इन ख़वातीन का ताल्लुक गुजरात की अलवी बोहरा मुस्लिम बरादरी से है। इस बरादरी की ख़वातीन आम तौर पर घर पर रहती हैं। हम मस्जिद में अपनी बरादरी के लोगों को कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते देखते थे। ऐसा हाल 15 बरस पहले नहीं था। इस तब्दीली को कबूल नहीं किया जाना चाहिए। तर्ज ज़िंदगी से मुतल्लिक अमराज बढ़ रहे हैं। बरादरी के लोगों को इस्लामी योगा अपनाने के लिए तैयार करना बेहतरीन हल है। इन सब को रूहानी यकीन दहानी की ज़रूरत है। इंसान का अपने मजहबी अकीदे से दिल का रिश्ता होता है। अगर अकीदा कायम हो तो दूसरी चीज़ें जो अकीदे से बाहर हैं उनका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। पैगंबर इस्लाम ने भी कहा है कि जो खालिस है उसे चुन लो और गैर खालिस को मुस्तरद कर दो। ख़वातीन का कहना है कि उन्हें फ़ायदा महसूस हो रहा है। योग हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुत्तहिद होना। इन मुसलमान ख़वातीन ने अपनी रूहानियत और सेहत को यकजा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। योगा इस्लामी स्टाइल। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि आज सरबीन का अहम मौजू था पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों पर जारी होने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 5 माह में कम से कम 4 सहाफ़ियों पर हमले हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।